Good morning students, how are you? Fine. Today we will discuss about simple interest and compound interest. In the simple interest, what is this principle? What is the principle? Principle is the sum that is lent is known as the principal. The sum that is lent, जिसे हम उधारी देते हैं, जो अमाउंट होता है उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल. The sum that is lent is called principal. Next one, what is the interest? Simple interest, compound interest. Interest is just a fixed amount. It is the fixed amount that is paid on the borrowed money. ओके, सो इंटरेस्ट ब्याज है जो हम किसी प्रिंसिपल पे करते हैं. प्रिंसिपल वो अमाउंट है जो हम लेंड यानी कि उधारी देते हैं. सो दीज आर टू इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड द कलेक्शन ऑफ बोथ द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज नोन एज द अमाउंट. अमाउंट इट इज द सम ऑफ both principal and interest. It is the sum of principal and interest. Here interest is of two types. Type of interest. Interest is of two types. One is simple interest. Second one is compound interest. Compound interest is interest on interest. It means interest is accumulated each and every year. So here first of all we discuss simple interest. What is this simple interest? In the simple interest, its formula is equal to, let us represent it by SI, simple interest. Now simple interest is equal to principal into rate into time divided by 100. It can be written as PRT upon 100. T stand for principal, R for rate, T for time. Now what is this rate and time? Time is just the amount of the time for which the sum is given. Principal is given. Principal is lent out. कितने समय के लिए प्रिंसिपल को उधार लिया गया, दिस इज नॉन एज द टाइम. रेट, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अमाउंट दिया गया या उधारी दी गई इज नॉन एज द रेट. ओके, now if principal, rate and interest are given, then we can calculate simple interest very easily. It's a simple straight formula. If we have to find principal and SI and rate and time is given, then what formula should we use? SI is multiplied to 100
and R and T are divided. So principal become SI into 100 upon rate into time. This formula is simply derived from the above formula. So main formula is SI is equal to PRT upon 100. Similarly, if we have to find rate, simple interest into 100 upon principal into time. Okay, if we have to find time, then similarly simple interest into 100 upon principal into rate. Okay, so these are the basic formulas, all are the same. You can find any one when any three are given. Okay, now how to find the amount? Amount is the sum of principal plus SI. It is the sum of principal and SI. प्रिंसिपल P, SI का वैल्यू कितना है? फॉर्मूला क्या है? PRT upon 100. So from here we can take the P as a common. So P into 1 plus RT upon 100. So our direct formula will be used here. By you can use this formula, you can use this formula. Okay, any one of the formula. It can also be written as 100 plus RT upon 100. These all are the formula for the amount. You have to just put the values of rate, time and principal and you can directly calculate amount. Or amount can be calculated by another method. कैसे कि आप पहले SI निकाल लीजिए फिर प्रिंसिपल को उसमें ऐड कर दीजिए, अमाउंट आ जाएगा. और आप अगर दो स्टेप में नहीं करना चाहते, फास्टर वे से करना चाहते हैं तो इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, यू विल गेट द सेम रिजल्ट. ओके, what will be the SI if the rate of interest is changes? If rate of interest is changes every year, yeah, rate of interest is different in different years, is different in every year. So its formula, what should formula we use here? Suppose R1 is interest, rate of interest in first year, and the second year R2 in rate of interest, R3 in the third year. पहले साल जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा वो R1 है, नेक्स्ट ईयर R2 है, उसके बाद R3 है, एंड देन सो ऑन. सपोज हमारे पास 3 साल का गिवन है और हमें 3 इयर्स के लिए रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो व्हाट फॉर्मूला शुड वी यूज? PRT, R1 into T कितना हो गया? 1 साल का गैप है, assume to be the 1 year gap. So PR1 upon 100. Similarly, PR2 upon 100. Similarly, PR3 upon 100, and then so on. So now you can take the P as a common. R1 plus R2 plus R3 upon 100. So this formula will be used here to calculate such a problem. Next one is compound interest. In the compound interest and simple interest, difference क्या है? What is the difference? This is compound interest. Simple interest में हमारे पास कुछ प्रिंसिपल होता है, वो हम उधार देते हैं, लेंट पर देते हैं. After giving this in on the lent of borrow, someone taken it borrowed. इसका जो एक फिक्स्ड टाइम होता है, उस टाइम पर हम उसका जो इंटरेस्ट है पे कर देते हैं, फिर नेक्स्ट जो टाइम इंटरवल होगा उस पर फिर पे कर देंगे. सो ये चलता रहता है. सो
इसके अंदर जो इंटरेस्ट है वो बार बार कैलकुलेट नहीं होता, बट इन द CI कंपाउंड इंटरेस्ट इनिशियली प्रिंसिपल है, इस पर एक फिक्स्ड टाइम के बाद यहां पर इंटरेस्ट होगा, बट दिस इंटरेस्ट इज नॉट पेड, दिस इंटरेस्ट इज नॉट पेड। और जब ये इंटरेस्ट पेड नहीं होता है देन इट इज ऑटोमेटिकली कलेक्टेड विद द प्रिंसिपल, सो न्यू प्रिंसिपल बिकम्स प्रिंसिपल प्लस दिस इंटरेस्ट। So again, whenever we at the fixed time we calculate the interest, this interest is calculated on this amount, not on this amount. So interest is now some more. So interest पे interest इसे बोलते हैं हम compound interest. ओके, एक्चुअल में हुआ क्या, इस पर तो हमें इंटरेस्ट देना ही पड़ा, इस इंटरेस्ट के ऊपर भी हमें इंटरेस्ट देना पड़ा। So this is become the compound interest. It is so much different between simple interest and compound interest. Now let us discuss some formulas related to compound interest. As we know, the total amount is paid at the last. Compound interest के केस में total amount last में paid होता है। वो amount कितना होता है? Principal into 1 plus rate into time upon 100, sorry, rate upon 100 power time. This is the amount that a person has to pay after t time and at the rate of a percent. This is a rate of interest, percentage में, time years में है। So what would be the interest? Compound interest क्या होगा इसके केस में? अब हमें पता है इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो CI हम निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट ही पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे, वी हैव टू पुट द फॉर्मूला हियर, 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर टाइम माइनस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इज टेकन कॉमन, नाउ 1 प्लस रेट अपॉन 100 power t minus 1. So this is the formula for compound interest. This is the formula for amount. You have to take care between these two formula. आपसे अमाउंट पूछा जाए, टोटल कलेक्टिव अमाउंट पूछा जाए, भाई आफ्टर सम 10 ईयर, 2 ईयर, 8 ईयर कितना अमाउंट पे करना होगा, then you have to use this formula. If someone asks about only you have to find the compound interest on this money for this time duration, then you have to use this formula. Okay, now next one, if the rate of interest is changes, if the rate of interest is changes at every year, rate of interest is differ from year to year, year to year, then compound interest will changes because its formula will definitely change. We will give the formula for the amount, first one. So amount will be equal to principal into 1 plus R1 upon 100. Suppose कीजिए कि फर्स्ट ईयर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो R1 है, सेकेंड ईयर में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, R2 है, थर्ड ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, R3 है, फोर्थ ईयर में, एंड देन सो ऑन। हमने 3 ईयर का लिए कैलकुलेट करके देखा तो इतना आ जाएगा। अभी हमें CI निकालना हो तो CI के लिए भी सेम फॉर्मूला है, ऐसे ये फॉर्मूला लगा के लास्ट में प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। सो इट बिकम्स अ फॉर्मूला फॉर द CI। नाउ नेक्स्ट वन, व्हेन द टाइम इज गिवन इन द फ्रैक्शन, अमाउंट, द फॉर्मूला फॉर द अमाउंट वाज principal into 1 plus R upon 100 power time. If
टाइम इज गिवन इन फ्रैक्शन। रिमेंबर, अगर टाइम फ्रैक्शन में है, लेट भाई टाइम की वैल्यू हमने ले लिया t is to p by q, somehow some fractional value is here, इससे हम क्या लिख सकते हैं, it can be written as t plus p by q। so यहां से आप इसको ध्यान रखना कि its formula will becomes amount will be p into वन फर्स्ट ईयर के लिए टाइम t होगा और सेकेंड ईयर के लिए टाइम हमारे पास क्या आएगा p by q। सो फर्स्ट ईयर के लिए तो फॉर्मूला सेम बन गया, पर सेकेंड ईयर के लिए हमें पावर, इसकी जगह हम क्या यूज करेंगे, रेट को p by q से मल्टीप्लाई कर दीजिए, p by q इंटू r अपॉन 100। सो यू कैन राइट इट एज p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 पावर t इंटू 1 प्लस पी आर अपॉन q इंटू 100। So this formula will also be useful for your upcoming exercise. Now the next one. Next, when interest is calculated half yearly, इसमें ध्यान रखना है जब कभी भी ऐसा सिचुएशन आएगा तो उसमें रेट और टाइम चेंज हो जाएंगे। So rate becomes half. So rate is equal to r by 2, जितना भी रेट था उससे हाफ हो जाएगा, एंड न्यू टाइम विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ट्वाइस, बिकॉज हाफ ईयरली, एक ईयर में 2 हाफ ईयरली होते हैं। सो हाफ ईयरली अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना है तो उसको टाइम को क्या कर देंगे, डबल। सो आवर न्यू फॉर्मूला विल बिकम्स p इंटू 1 प्लस 2 r अपॉन 200 पावर 2t ट्वाइस। when interest is calculated quarterly, then rate फिर चेंज होंगी, rate and time will again changes। now rate becomes 1/4, so r by 4 हो जाएगा, and time will be changes also, time becomes 4 times, 4 into t। so what will be the amount? amount will be principal into 1 plus r upon 400 power 4t। so these type of the questions are very important for examination perceptions, आएंगे जरूर ये एग्जाम में, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर टाइम 2 ईयर हो, ट्वाइस द फिक्स टाइम, जो भी हमारा ट्वाइस होता है, जो भी टाइम ड्यूरेशन होगा उसका ट्वाइस, जैसे ईयर में होता है जनरली, तो 2 इयर्स, जब हमारे पास टाइम ड्यूरेशन हो 2 इयर्स, उसके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होगा। इस तरह के क्वेश्चंस अब एग्जाम में बहुत आते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट अपॉन 100 पावर 2। दिस इज द फिक्स फॉर्मूला, आपको इसे याद रखना है, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन, इसी फॉर्मूले को अगर हमारे पास प्रिंसिपल और रेट गिवन है देन वी कैन कैलकुलेट दिस। अगर प्रिंसिपल और रेट गिवन नहीं है, रेट और सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, देन हाउ कैन वी कैलकुलेट। इसी को थोड़ा मॉडरेट करते हैं, P इंटू में R अपॉन 100 इंटू 100, इसी को ऐसा लिख सकते हैं। अब PR अपॉन 100 क्या होता है, इट कैन बी रिटन एज SI अपॉन टाइम इंटू रेट अपॉन 100। अब टाइम क्या है यहाँ पर, टाइम है 2 इयर्स,
यहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा 2. सो व्हाट डज फॉर्मूला बिकम SI into R upon 2 into 100. सो PR upon 100 की जगह हमने पुट कर दिया SI upon 2, SI into R upon 2 into 100 यानी कि 200. सो ये फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं. मैक्सिमम टाइम हमारे पास ये फॉर्मूला यूज होता है. और SI अगर रेट SI and rate is given, then this formula should be used. So it is very. Next, the difference, the difference between SCI and SI for time is equal to 3 years. 3 ईयर का डिफरेंस हो तो क्या होगा उसके अंदर, CI minus SI for 3 year it is equal to P into R upon 100 whole twice. ये फॉर्मूला तो था 2 साल के लिए, 2 ईयर के लिए, और 3 ईयर के लिए हमें क्या करना है, 3 plus R upon 100 से मल्टीप्लाई करना है. दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला टू बी यूज्ड फॉर द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस के लिए. इफ यू वांट टू चेंज similarly in the form for the SI, you can also convert it. Otherwise you can remember this formula also. Okay, compound interest में होता क्या है, सिंपल इंटरेस्ट में हम इंटरेस्ट ईच एंड एवरी ईयर इंटरेस्ट जो है वो हर साल पे कर देते हैं. बट कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट हम बीच में पे नहीं करते हैं, हम लास्ट में पे करेंगे. इट मीन्स हमें जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलेगा. लुक एट हियर, जस्ट हमने कोई अमाउंट, कोई प्रिंसिपल हमने लैंड किया. इस प्रिंसिपल पर हमें 1 साल के बाद, आफ्टर 1 ईयर, बिकॉज जो इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एनुअली है, तो जो इंटरेस्ट बनेगा वो एनुअली बनेगा. यहाँ पर हमारे पास कुछ इंटरेस्ट बना है. क्लियर? तो हमने अगर SI है तो यहाँ ये पे कर देंगे, फिर अगली बार फिर प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा. बट CI के केस में अब जब यहाँ नेक्स्ट सेकेंड ईयर में जाकर जो इंटरेस्ट लगेगा, यहां इंटरेस्ट किस पर लगेगा, इस पर भी लगेगा, इस पर भी लगेगा. इस पर इंटरेस्ट कितना था, सेम अगेन इंटरेस्ट आएगा. सपोज कीजिए यहाँ टोटल अमाउंट कितना होगा, टोटल ही बना लेते हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. अब जो रेट लगेगा वो इसके ऊपर लगेगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. क्लियर? सो इन बोथ केस प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट कितना लगा, P प्लस I. प्रिंसिपल पर फिर इंटरेस्ट जितना इंटरेस्ट लगेगा जितना आना था. बट इस इंटरेस्ट पर भी तो रेट लगेगा, जो रेट परसेंट होगा, जो रेट परसेंट हमारा यहाँ लगा है वही रेट परसेंट यहाँ भी लगेगा, तो सेम इंटरेस्ट बनेगा. इसका वही है. तो अब जब हम यहाँ पे करेंगे, टोटल सेकेंड ईयर में जाके इसको कलेक्ट करते हैं, तो प्रिंसिपल था प्लस 2 बार इंटरेस्ट हुआ तो 2I, फिर रेट लगा, क्योंकि वो इंटरेस्ट के ऊपर भी जो रेट लगा वो वाला इंटरेस्ट के ऊपर रेट अलग लगेगा. सो ईच एंड एवरी केस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट हमें मिलता चला जाएगा. इसका इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, सपोज टाइम है 1, इसकी वैल्यू होगी PR, T की वैल्यू 1 अपॉन 100, तो PR अपॉन 100 आ गया. इससे भी यहाँ निकालेंगे, इसका भी कितना आएगा, ये PR अपॉन 100, सिंपली इतना ही आएगा. इंटरेस्ट पे भी अब निकाल के देखते हैं कितना आएगा. लेट अस कंसीडर, इस पर आएगा IR अपॉन 100, बिकॉज यहाँ पर इंटरेस्ट को हम ऐसे प्रिंसिपल कंसीडर करके निकालेंगे. तो टोटल हमारे पास कितना अमाउंट जहां पे करना होगा, प्रिंसिपल जो स्टार्टिंग में लिया था, जो अमाउंट लिया था, सम लिया था, तो यहाँ पे करना होगा सम को, प्लस इस पर इंटरेस्ट कितना मिला, PR अपॉन 100 फर्स्ट ईयर में. सेकेंड ईयर में इतना भी मिला, प्लस हमें ये इंटरेस्ट और मिला. और इंटरेस्ट क्या था, ये P क्या होता है, प्रिंसिपल ना, I क्या होता है, ये I is equal to what, PR upon 100. इसे भी आप एक बार लिख सकते हैं, PR square upon 100, P square. So now this whole thing will change. Okay. Now let us calculate. Take P, इन दोनों को हम कंबाइन कर सकते हैं, जैसी क्वांटिटी है 2PR upon 100 प्लस PR upon 100 का होल स्क्वायर. Now let us take P as a common. 1 plus
2r/100, twice of r/100 प्लस r/100 का होल स्क्वायर। अब यहां से देखिए a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होगा, b स्क्वायर प्लस 2ab किस चीज की आइडेंटिटी है, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a 1 है, b r/100 है, सारे का होल स्क्वायर। तो अब ये आइडेंटिटी हमारे पास इस तरह से फॉर्मूला बनेगा। टाइम हमने 2 ईयर तक लिया तो 2 आ गया, अब इसे n ईयर तक लेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर हम n ईयर तक लेते हैं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r/100 सारे की पावर n। n क्या है, टाइम, n क्या है यहाँ पर, टाइम, तो हम t लिख देते हैं, टाइम। सो दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, एक्चुअली अमाउंट है इन कंपाउंड इंटरेस्ट, दिस इज अमाउंट इन कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, p इंटू 1 प्लस r/100 पावर t माइनस p। So this is just the amount of paid after 2 years. आप अगर इस चीज को देखते हो, समझते हो, तो आपको ये पता लगेगा कि जहां इंटरेस्ट हम एनुअली पे कर रहे थे वो हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, तो सिंपली ये एक्यूमुलेट हो जाता है, टोटल हो जाता है, लास्ट में हम इनको क्या करते हैं, पे करते हैं, तो इन पे इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट हमें मिल रहा है। इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे बोल सकते हैं, जिसमें इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिले। तो इसका अगर 2 ईयर के लिए लिया था तो ये फॉर्मूले में 2 आ गया, और 3 ईयर के लिए नहीं तो फॉर्मूले में t आएगा। सो परसेंटेज, व्हाट इज दिस परसेंटेज, व्हाट इज दिस परसेंटेज, परसेंट, दिस वर्ड इज परसेंट। परसेंट मीन्स पर 100, पर 100. So its name says percent means per 100. It means which is divided by 100, per 100. So जिसमें डिनोमिनेटर क्या हो हमारे पास 100 हो। So it's so simple. So numerator कोई भी हो सकता है, maybe any fraction, maybe any number, but its denominator क्या होगा हमेशा a 100. So percentage is a fraction whose denominator is 100, percentage. Okay, so this is all about percentage. Simply अगर हम किसी को आइडेंटिफाई करें तो उसके आगे परसेंटेज के आगे एक सिंबल मिलेगा, दिस, लाइक 20%, दिस। तो अगर इसको हम अगर एक्सप्लेन करें इस डेफिनेशन के लिए, सो इट मींस 20/100। सो 20 आउट ऑफ 100, परसेंटेज सेज 20 आउट ऑफ 100, 20%, 120%, दिस इज 280%। तो 280 मींस 280 divided by 100. So this is means percent divided by 100. If we remove this symbol percentage, or remove the symbol of percentage, it means we have to introduce or divide the number by 100. Well, actually this 6%, 15%, 20%, whatever, इनका कोई अपने आप में मीनिंग नहीं है, they have no meaning, but if they comprises of the statement 6% of 80, then it has a meaning and it has a value, a fixed value. It means 60%, 6/100, of means multiply 80, then we can calculate it कि 6% of what, 15% of what. So now they have some meaning. Suppose in a class of 250 students, 30% are girls students. Then find the number of girls student. तो गर्ल्स स्टूडेंट कितनी होंगी, सो नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट कितनी है, it's a simple, because it is percentage given,
कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड करेंगे? गर्ल्स स्टूडेंट्स आर 30% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि 250। अब इस स्टेटमेंट को अगर हम ऐसे लिखते हैं तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं ना। नाउ 30% मीन्स, परसेंट मीन्स डिवाइडेड बाय 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई जो भी नंबर है इनटू 250। नाउ यू कैन कैंसिल आउट 10 से 10, 10 से 10, 25 3 75, so answer is 75. So 75 are girls and remaining are boys. Now let us consider conversion of percentage to fraction. How can we convert? 1% is equal to what? 1 upon 100. परसेंटेज का सिंबल हटाएंगे तो डिवाइड बाय 100. 2% means 2 upon 100 means 1 upon 50. 5% means 4% means 4 upon 100. That means 1 upon 25. 5% means 5 upon 100, 1 upon 20. आप चाहो तो डायरेक्ट वैल्यूज भी याद रख सकते हो, बिकॉज इन फ्यूचर आपको कभी भी जरूरत पड़े यू कैन रिकॉल डायरेक्टली कि 5% मीन्स 1 upon 20. सो 5% ऑफ नंबर निकालना है तो 1 upon 20 से मल्टीप्लाई कर दो. नेक्स्ट 10%, इट मीन्स 10 upon 100, 1 upon 10. Then 20% means 20 upon 100, 1 upon 5. 25% means 25 upon 100 and it equals to 1 by 4. 50%, it means 50 upon 100, it is equal to 1 by 2. 50% means half, so ratio क्या बन गई? half. 75%, it means 75 upon 100, it means 3 by 4th of the value. It's easy. Next 100%, 100% means 100 by 100 means 1, यानी कि क्वांटिटी जो भी नंबर आएगा तो नंबर 100% सेल्फ होता है, जो भी नंबर हो. Then 200%, it means the number is twice of itself. 2 आ गया, it means 2 times. हमें नंबर को इतने से मल्टीप्लाई करना है, then we get the result. Now 300% means, it means multiply should be done by 3. It is equal to 3. Or you may say 3 by 1, 2 by 1. 500 means 5 times. So you can find the percentage equal to its respective fraction by this method. Okay? Now the increase percentage, decrease percentage, and etc. How to know about the increase percentage of any quantity? It is equal to increase value divided by total value, or you may say original value. Multiply by 100. This is known as increase percentage. Similarly, decrease percentage is equal to decrease in value divided by original value multiply by 100. For example, इनिशियली कोई हमारे पास 10 रुपीज थे एंड आफ्टर 50% 5 रुपीज इंक्रीज, आफ्टर इंक्रीमेंट ऑफ 5 रुपीज वी गेट 15 रुपीज. सिंपल है, हमारे पास इनिशियली 10 रुपीज थे, हमने 5 रुपीज और में लिए, वी गेट 15 रुपीज. तो हमारे पास कितने रुपीस का इंक्रीमेंट हुआ? व्हाट
is increase in the 10 rupees to 15 rupees. इंक्रीज कितना? 5 रुपीज का इनिशियल अमाउंट कितना था? 10 मल्टीप्लाई बाय 100, सो 5 टू सा 10, 2 से कैंसिल किया तो 50. तो एक्चुअली में ये 50% इंक्रीज हुआ. कितना इंक्रीज हुआ? इट इज जस्ट 50% इंक्रीज इन द ओरिजिनल वैल्यू. सिमिलरली डिक्रीज की वैल्यू बात करें तो डिक्रीज भी ऐसे ही कैलकुलेट होंगे. नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्काउंट. व्हाट इज दिस डिस्काउंट? समटाइम जब हम मार्केट में जाते हैं तो किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर एमआरपी लिखा होता है या कुछ मार्केट प्राइस होता है. उस मार्क प्राइस के ऊपर सपोज करो 250 रुपीज है, शॉपकीपर हमें कुछ डिस्काउंट देता है, कुछ रिबेट करता है, छूट देता है. दिस इज नॉन एज द डिस्काउंट. और उस डिस्काउंट के बाद 50 रुपीज का डिस्काउंट दिया सपोज कीजिए, फिर हमें जो कहते हैं कि आपके पास जो सेलिंग अमाउंट आएगा वो कितना होगा? सेलिंग प्राइस इट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट. सो यू कैन से डिस्काउंट इज व्हाट? डिस्काउंट इज एक्चुअली जो मार्क प्राइस था माइनस सेलिंग प्राइस. सो मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज नॉन एज डिस्काउंट. एंड व्हाट इज डिस्काउंट परसेंटेज? Because discount is on market price, so discount percentage is equal to market price minus selling price upon market price, and then multiply by 100%. So this will be the percentage of the discount. How to calculate? This formula will be used. आपको ये दोनों फॉर्मूले यूज करने होंगे to calculate the discount and discount percentage. Okay. Next one, some important terminologies for profit and loss. Profit and loss. First one is CP. What is this CP? CP is the cost price of any product. SP, selling price. If and what is the profit? प्रॉफिट कब होगा? If SP is more than CP, it means profit is equal to SP minus CP, and loss is equal to what? CP minus SP. Clear? So profit percent is equal to. अब now profit is always collected on CP, cost price. So formula will be SP minus CP upon CP multiply by 100. और ये मैं डायरेक्टली से कि प्रॉफिट अपॉन CP multiply by 100%. So similarly loss percentage क्या हो गया? Loss percentage is equal to loss upon, this is what? Loss upon CP multiply by 100%. So you must know about these identities, formulas that will help you to calculate